हैव टू लर्न, डोंट नीड टू वॉच एनी। स्कैनर जो है सिर्फ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट है या फिर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए। स्कोर 200 इन रिमेनिंग। Hi guys, it's day 8 of 20 days challenge and today's target is 23 marks. Okay, so before starting this video I'm going to tell about something about your comments actually. So I'm getting lots of comments of those students who watched my video that is 20 days challenge too late, and they are commenting what to do now and how they can manage that backlogs. So tomorrow I will upload a video regarding this, how they can manage their backlogs and how they can at least score 200 in remaining. So for that you have to do one thing, you have to subscribe to my channel. And for those students who are watching continue and continuing in then 20 days challenge, so what you have to do, you have to just comment today's target, and after completing it just edit and write down today's target completed. Okay, and trust me, today's day is very important, so watch the video till the end without skipping. And for those students who are commenting जो 20 days challenge में है बट कुछ बैकलॉग है उनका, लाइक हो भी सकता है ऐसा, कुछ जरूरी है कि नहीं हो सकता। सो जिनका बैकलॉग से एक काम आप कर सकते हो, यू कैन टेक 1 day to complete your all backlogs and then again continue करना आपकी 20 days challenge. Okay, but trust me, I will upload video daily because कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपना टारगेट अचीव कर ले रहे हैं and they don't need any 1 day for backlogs. Okay, तो वो उनका एक दिन तो वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी। आप ये कर सकते हो, एक दिन का गैप लो, जो आज का वीडियो को आप नेक्स्ट डे मतलब ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो आप एक दिन का गैप लेके अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लो, देन आप आगे फर्दर का चैलेंज लेना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, बट प्लीज डू सब्सक्राइब क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है कि जो बच्चे अब तक स्टार्ट नहीं किए हैं, जो कमेंट कर रहे हैं कि जो 20 डेज चैलेंज का वीडियो जो बहुत लेट देख रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए यू हैव टू डू सब्सक्राइब फॉर दैट वीडियो। ओके, सो लेट्स बिगिन। As you know how you can do accounts, law and BCR, but before starting मैं थोड़ा सा explain कर देती हूँ। For accounts you have first do each and every illustration and then do जितने भी practical question दिए means back question, and then complete past year paper for जो May attempt का है specially, do all that question and then do recent MTP. That's it. You have to do all illustration, back question, past year paper of May attempt from 2018. Okay, and then do recent MTP. Okay, for law you have to learn each and every important section, do back question, past year paper especially for May attempts from 2018, and then do recent MTP. Same for BCR. Okay, मुझे एक कमेंट भी आया था कि स्कैनर जो है सिर्फ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट है या फिर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए। सो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको जो लॉ एंड अकाउंट्स है उसमें अगर आप मॉड्यूल को कर लेते हो अच्छे तरीके से, जितने भी इलस्ट्रेशन एंड बैक क्वेश्चन दिए हुए हैं, देन यू डोंट नीड एनी स्कैनर। बट फॉर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स एज इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, तो इसलिए इसके लिए स्कैनर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आप अकाउंट्स एंड लॉ बीसीआर का स्कैनर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इसमें पास्ट ईयर स्कैनर में क्या रहता है, सिर्फ पास्ट ईयर पेपर से रहते हैं, एंड पास्ट ईयर पेपर तो आपको मिल ही जाएगा। डोंट नीड टू सॉल्व स्कैनर फॉर अकाउंट्स एंड लॉ। ओके, so let's talk about today's target. In accounts you have to do first that is chapter 1 का जो unit 2 है वो, as last day you have completed unit 1 and today you have to do unit 2, but before starting unit 2 you just revise unit 1 then start unit 2. Okay, तो ये तो आपका मॉर्निंग का टाइम फिक्स है, एंड देन यू हैव टू डू NPO मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज के दिन आपको ये करना है, एंड इन लॉ you have to do remaining units of sales of goods, like that is unit number 3 and unit number 4. Okay,
and in BCR you have to do later and जितने भी formal letter, informal letter, mails, do all practice. and आप इसको अब मैं बताऊँ तो आप BCR को कैसे कर सकते हो. ऑर्डर जो लेटर है ना उसमें देखो 3-4 वैरायटी, लाइक ऑर्डर का, फिर आप इंक्वायरी का, फिर उसका रिप्लाई करने का, तो सबका फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है. जस्ट बीच का जो बॉडी होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. ओके, तो एटलीस्ट ईच एंड एवरी जो टॉपिक है, लाइक ऑर्डर का, इंक्वायरी का, उसका रिप्लाई का, सबका एक एक बार आप एटलीस्ट देख के ही सही बट लिखो, उसको रिटन प्रैक्टिस करो. बस ऐसे बुक देख लेना है फिर लर्न करने से नहीं होगा. यू हैव टू राइट. एंड सेम फॉर मेल ऑल्सो. फॉर्मल इनफॉर्मल में सारा देखना है आपको. आपको अगर समझ नहीं आ रहा, आपने अभी तक कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, तो कैसे करोगे आप? एटलीस्ट बुक ओपन करो, आप देख देख के ही लिखो. ओके, बट यू हैव टू राइट. एक बार लिखेंगे, 2 बार देख देख के लिखोगे, फिर आपको माइंड में क्या फॉर्मेट बैठ जाएगा, तो फिर आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. तो इसलिए आपको, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप एटलीस्ट देख के लिख सकते हो. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड फॉर लॉ यू डोंट नीड टू वॉच एनी वीडियो, कि अभी वीडियो देखने से वो टीचर पढ़ाएगा बट आपको लगेगा कि हाँ ये तो आता है, बट आप लिखने जाओगे तो नहीं होगा. यू हैव टू लर्न. दिस इज द टाइम यू हैव टू लर्न. डोंट नीड टू वॉच एनी वीडियो, बट यू कैन वॉच माई वीडियो. दैट इज इम्पॉर्टेंट सेक्शन. आपको इस वक्त ईच एंड एवरी सबको कवर करने जाओगे, इतना टाइम नहीं हो. यू हैव टू डू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के यूनिट 3 and 4 मैंने सबका बना रखा है. तो गो एंड वॉच दैट वीडियो. तो आप इजिली एटलीस्ट उतना करके जाना, तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो डू सब्सक्राइब फॉर दैट इंपॉर्टेंट वीडियो. स्पेशली वो स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जो अभी तक स्टार्ट नहीं किया एंड दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट, एंड हाउ दे कैन स्कोर एटलीस्ट 200, बिकॉज अप टू 100 प्लस का स्कोर करना सोचना एक तो मुश्किल काम है, या बहुत ही कम टाइम बचा आपके पास. ओके, तो आप उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो. एंड टिल देन डू लाइक एंड डू कमेंट टू दिस टारगेट 23 मार्क्स. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.